अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंटरव्यूज़ की, जिसमें हमने जो है जूनियर कैंडिडेट्स के साथ जो है इंटरव्यू लिया सीएसएस 2021। आज हमारे साथ है मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर सर फाजिल बुखारी साहब, 46 कॉमन पीएसपी। I am Syed Fazil Bukhari from Police Service of Pakistan, PSP 46 Common. I passed CSS 2017 and I got allocated in PSP in my first attempt. So nowadays I am posted in Hyderabad as a DOFC and I am also teaching essay at Comex Academy. जैसे कि सर ने बताया, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं और सर की एक ऐसे की बुक भी लिखी हुई है माशाल्लाह। तो इस वजह से हम थोड़ा सा आज जो है ऐसे पे डिस्कस करेंगे, देन आफ्टरवर्ड जो है इंग्लिश कंपोजिशन। सर थोड़ा सा हमें ऐसे के बारे में थोड़ा गाइड करें। Essay जो है it is considered one of the most difficult paper in CSS because of its technicalities and a lot of majority of student I would say fail in essay writing because of plethora of issues. There is not only one reason for failure. You didn't ask, but I would try to highlight few among them. Sure, sir. So number one, students or aspirants, those even who are competent, who can write well during practice, they fail because number one, either they are unable to understand the topic, or they understand topic but they write irrelevant outline, or number three, they do not know structure of paragraph writing, introduction, making outline, thesis statement and conclusion, and most of them also lack knowledge and they give vague arguments. So the reasons are multiple, and every individual has different reason for failure. So when it comes to preparation of essay, everybody knows that they are going to fail in essay, but the minority practices for essay and majority leaves at that they think that they would prepare essay in the end of the month or before 1 month of CSS exam. So there are a lot of reasons for failures. सर फिर हमें ये बताएं थोड़ा सा ऐसे में कि आउटलाइन की जो है लेंथ कैसे होनी चाहिए, या आउटलाइन हम कैसे बनाएं किसी भी टॉपिक को, आइदर वो जनरल हम पहले ऑप्ट करें या ट्रेडिशनल एसेज होते हैं। एसेज जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं सर। कुछ आपके होते हैं प्रॉब्लमेटिक एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, या आपके आर्गुमेंटेटिव होते हैं, लिटरेरी एसेज होते हैं। तो और हर किसी के जो हैं वो स्ट्रेंथ होती है। लिटरेचर वाले जो एसेज होते हैं, लिटरेरी एसेज, उनको बहुत टफ समझा जाता है। मोस्टली लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसको अटेम्प्ट करने से अवॉइड करते हैं बिकॉज इट डिमांड्स योर लिटरेरी टेस्ट, लिटरेरी बैकग्राउंड, लिटरेरी एक्सप्रेशंस। तो दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक और आर्गुमेंटेटिव, मेजोरिटी आपकी जो CSS एस्पायरेंट्स हैं वो उसकी तरफ जाते हैं, इशू बेस्ड एसेज की तरफ। आउटलाइन का आपने क्वेश्चन पूछा। आउटलाइन, एवरी टॉपिक हैज अ डिफरेंट आउटलाइन। मतलब there are hundreds of essay teachers in Pakistan. Everybody is teaching different technique, and students who are getting classes and tuitions from different mentors, and they qualify essay. The one topic, for example, if a colonial mentality is impeding progress of Pakistan, this is one topic, and 5 candidates who have passed the same topic, those 5 must have written different way, right? So there is no hard and fast rule for making outline, but there are some basics. For example, if there is a topic of democracy, hopes and hurdles, aspirant must write sufficient arguments, must satisfy the demand of topic. They are asking about democracy, its hopes, its hurdles. So a lot of aspirants, mostly they have prepared for democracy and they would start creating outline on their own. For example, someone would write definition of democracy, someone would write types of democracy, and a lot of irrelevant stuff. Okay. So relevancy is the key in making outline. Write about introduction, thesis statement, hopes, few hopes, hurdles, and if needed you can write solutions. That's all. अच्छा सर, इसमें जो थीसिस स्टेटमेंट होती है बिफोर आउटलाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है देना, या उसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम फिर दोबारा इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं आउटलाइन के बाद?
आपने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, कोई सीजन रिलीज होता है, सही। तो उससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर ट्रेलर। आता है, और वो ट्रेलर देख के आप समझ जाते हैं कि मूवी देखनी है या नहीं देखनी। सही है। यू कैन कंसिडर थीसिस स्टेटमेंट लाइक अ ट्रेलर ऑफ योर होल एसे। इट इज लाइक समंदर को कुएं में बंद कर देना। सही। तो थीसिस स्टेटमेंट आपकी वेरी प्रिसाइज होती है, और वो आपकी एक तो स्किल्स बताती है कि आप कितने स्किलफुल हैं कि इतने बड़े टॉपिक को आप किन किन एंगल्स पे डिस्कस करना चाह रहे हैं आगे। यू समराइज इन फ्यू 2 to 3 सेंटेंसेस। ठीक है। लेकिन इट इज अगेन, एज यू सेड, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। वो लोग जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है वो भी पास हुए हैं, वो लोग जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी वो भी पास हुए हैं। ओके। So it is not hard and fast rule. It is just to tell your examiner that I have these skills of precising my whole point of view in few words. ठीक है। That's all. अच्छा सर, उसके बाद जैसे कि हमने थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन, फिर आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, तो उसकी कोई लेंथ लिमिट होती है? और इंट्रोडक्शन में वो आउटलाइन डिस्कस करनी होती है या फिर जस्ट इंट्रोडक्शन हमने कैसे अटेंड करना होता है? आप देखें, मोस्टली जो आई हैव चेक्ड एंड असेस्ड अ लॉट ऑफ एसेज, यस। तो मोस्टली जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि एक ही आउटलाइन बनाएंगे, सही। वही आउटलाइन छाप देंगे इंट्रोडक्शन में, ओके। उसी आउटलाइन में पूरा ऐसे होगा, वही आउटलाइन आपको नजर आएगी कंक्लूजन में। सर। दिस इज वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी, ओके। वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इट मींस आप रीडर को बोर कर रहे हो, सेम रिपीट कर सेम चीजें। एंड रिपीटेशन इन ऐसे राइटिंग इज क्राइम। ओके। आपने आउटलाइन लिख ली, सही है। यू हैव टू बी रिलेवेंट टू द आउटलाइन, आपकी पैराग्राफ स्ट्रक्चर उसी के मुताबिक, सीक्वेंस ऑर्डर सेम होगा। बट इंट्रोडक्शन में देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू राइट इंट्रोडक्शन। आप कोटेशन से स्टार्ट करें, आप रिपोर्ट से स्टार्ट करें, एंड आप एनोक्डोट किसी स्टोरी से स्टार्ट करें। कोटेशन मस्ट बी आई कैचिंग। ओके। आपकी आउटलाइन एग्जामिनर जब पढ़ता है उसको आइडिया हो जाता है कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो या नहीं हो, आपके रिलेवेंट है या आप इरेलीवेंट चीजें लिख रहे हो। ही डिसाइड्स कि आगे जाना है नहीं जाना। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज फेस ऑफ द एसे। फेस ऑफ द एसे मतलब फेस ही खराब हो तो बॉडी पे क्यों जाएगा भाई? ट्रू। तो वो आपका फेस है। अब इसी तरह दोबारा अगर मैं उसी मूवी की मिसाल दूं, आपने ट्रेलर अच्छा दे दिया, आपने आउटलाइन अच्छी दे दी, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेलर। आप इंट्रोडक्शन पे आ गए, मूवी स्टार्ट हो गई, पहले आधा घंटा आपको बोर हो गए। सही। आपको वो जो ट्रेलर था वो आधे घंटे में ही देख लिया। सही। वही सारी चीजें जो पीछे पड़ के आए हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट बोर। अच्छा सर, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ की जो लेंथ होनी चाहिए, यस यस, दिस वाज योर बेसिक क्वेश्चन, आई मिस्ड इट। लेंथ आपकी इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए कम से कम 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो इंट्रोडक्शन का होता है जी, और जो मेन जो पैराग्राफ्स होते हैं और उसके अलावा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, दे ऑल आर डिफरेंट। द टेक्निक ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन इज डिफरेंट, the techniques of writing conclusion is different, the technique of writing a basic paragraph जो आप बॉडी में लिखते हो, that is different। अच्छा सर, इसके बाद ऐसे जो है मतलब कि इसकी कोई वर्ड लिमिट सर होती है ऐसे की? यस, वर्ड लिमिट ये 2500 से 3000 तक स्टैंडर्ड है, लेकिन nobody counts words, nobody counts words। ठीक है सर। आप किसी एग्जामिनर कोई इतना फारिग नहीं होता कि आपके एक एक करके वर्ड काउंट करेगा, nobody counts। द स्टैंडर्ड आप इस तरह मेजर कर सकते हो कि आप वो ऐसे आपका एक तो रिलेवेंट हो, सारे एस्पेक्ट्स उसको डील कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, आप पैराग्राफ की लेंथ पे कर सकते हो कि आपका एक पैराग्राफ कम से कम 6 से 8 सेंटेंसेस होना चाहिए, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और कम से कम आपके जो ऐसे है उसमें कम से कम आपके पास 16 से 18 या 20 पैराग्राफ होने चाहिए, स्टैंडर्ड है। अगर इससे कम है, अगर आपने रिलेवेंट लिखी हैं चीजें लेकिन आपने 10 पैराग्राफ लिखे हैं, ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। अच्छा सर, ये ऐसे के बारे में एक क्वेश्चन ये भी है कि ऐसे को हम कैसे प्रिपेयर करें? कोई टॉपिक इसमें स्पेसिफिक या कहाँ से प्रिपेयर करें? इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें ना, ऐसे में सबसे मसला ये होता है कि लोगों को डेटा कहाँ से लाएं, डेटा से कोटेशन कहाँ से लाएं, रिपोर्ट्स कहाँ से लाएं, सर्च कहाँ पे करें।
ठीक है, चलो ठीक। टेक्निक्स तो पता चल गई, सही सर। मेरी किताब उठा के पढ़ लो, आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी। सही। या किसी की भी पढ़ लो, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो, टेक्निक को आपको पता चल लगे। अब उसको कलेक्ट कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, दैट मैटर्स। ट्रू। एंड दिस इज व्हाई दिस इज गुड क्वेश्चन। अब करना क्या है, व्हाट वाज माय स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आई सजेस्ट टू एस्पिरेंट्स, कि आप सबसे पहले जो आपके जो मदर एरियाज हैं, जो मेन एरियाज हैं, जिन पे किसी न किसी एंगल में आते हैं। आता ही है ऐसे, सही। ठीक है, वो मैक्सिमम 20 से 25 है, Okay. मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम 20 से 25 एरियाज हैं। आप एक टॉपिक उठाएं, वो पास पेपर में उसकी जितनी भी एंगल्स आ रही हैं सारी नोट कर लें। सही। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी की जितनी भी एंगल्स पिछले 10-20 साल में आई हुई हैं सारे निकाल लें। एक एक एंगल पे आउटलाइन बनाए, आर्ग्यूमेंट्स बनाए। आइदर वो पाकिस्तान पे हो या इंटरनेशनल। ठीक है। एक एस्पेक्ट पे आप आउटलाइन बनाए, आर्ग्यूमेंट्स बनाए। ठीक है। और एक एक आर्ग्यूमेंट्स पे जहां जहां आपको रिलेवेंट लग रहा है रजिस्टर मेंटेन करें। सही। आप 25-30 टॉपिक अगर इस तरह आपने तैयार कर ली, आउटलाइंस हर एस्पेक्ट की बन गई, सही। और उसमें से जहां जहां पे आपको डेटा रिक्वायर्ड है, गूगल इट, उसको लिख लें अपने पास, ठीक है। आपके नोट्स बन जाएंगे। नोट्स नहीं बनाते लोग ऐसे के। हाँ हाँ हाँ। अब वो क्या करते हैं कि कोई भी उठा के एक ही एस्पेक्ट वाला ऐसे डेमोक्रेसी लिखें, वो कहेंगे मैंने डेमोक्रेसी ऐसे लिखा था, सही। फिर भी फेल हो गया, फिर बिकॉज यू डिड नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स। राइट। तो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें, सारों की आउटलाइन बनाएं, सारों का डेटा लिखें। जिस तरह आप दूसरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे को भी रिवाइज करें। सही। आर्ग्यूमेंट्स को रिवाइज करें, डेटा को रिवाइज करें, कोटेशंस, हर टॉपिक से रिलेटेड 10-15 कोटेशंस निकाल लो अच्छे अच्छे से। अच्छा सर, ठीक है सर। उसके बाद सर ये ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक बुक या कोई वेबसाइट एनीथिंग? बुक आप ले सकते हैं, मार्केट इज फुल ऑफ बुक्स। ओके। ठीक है, हमने भी उसमें एडिशन कर दिए, लेकिन उससे सिर्फ आपको एक सैंपल मिलेगा। सैंपल। ठीक है, अब जो मैंने एसेज लिखे हैं उसमें मैंने मेरे अपने हाथ से लिखे हुए सारे एसेज हैं सर। उसमें मैंने सिर्फ ये ऊपर लिखा है सैंपल एसेज। ओके। सैंपल। यू जस्ट रीड एंड गेट आइडिया हाउ एसे इज रिटन। लिखना आपने खुद है, फिर वो असेस करानी है। वो एंड आपकी असेसमेंट सर कितना रोल बहुत ज्यादा रोल करती है, बहुत ज्यादा। मतलब जो लोग असेस नहीं करवाते, जो लोग लिखते नहीं है, तो या तो उनके नंबर कम आते हैं, सही, या तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, और असेसमेंट जो है वो आप रेगुलर बेसिस पे करवाएं, तभी आपकी जाके आहिस्ता 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 इम्प्रूवमेंट आएगी। CSS इज लाइक लॉन्ग टर्म जर्नी। ये आपका 1-2 महीने में या 1-2 रात में यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं है कि हो जाएगा। सही। ऐसे विल टेक टाइम, कम से कम 3 महीने। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट टू द ऐसे हम आते हैं इंग्लिश कंपोजिशन पे सर। इंग्लिश कंपोजिशन सर पेपर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? हाँ, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर। कंपोजिशन में ये है कि हमारा जब एस्पायरेंट, नया एस्पायरेंट सर, न्यू एंट्रेंट जो है, जिसको ख्वाहिश चढ़ी है CSS करने की, वो ग्रामर की किताबों में घुस जाएगा। सही। कीड़ा बन जाएगा कि मुझे ग्रामर। Remember one thing, for CSS you don't have to, you are not preparing for becoming a grammar teacher. True. You are preparing to be an officer. अब उसमें करना ये कि आप उसका जो सिलेबस है वो सारा देखें, क्या क्या एरियाज हैं उसके, करेक्शन होगी, पंक्चुएशन होगी, इडियम्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, प्रेसी, ट्रांसलेशन, कंप्रीहेंशन, जितने भी एरियाज हैं, सही, एनालॉजी, वोकेबलरी, वो एरियाज डिफाइन कर लें कि मुझे सिर्फ इन 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 एरियाज पे काम करना है। कोई भी ग्रामर पूरी दुनिया में सेम है। सही सर। आप रेनन मार्टन पढ़ लें, रायमन मर्फी पढ़ लें, टू द पॉइंट पढ़ लें, कोई भी किताब उठा के पढ़ लें, डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, वोकेबलरी कहीं आसान होगी, कहीं मुश्किल होगी, रूल्स आर सेम। तो सर इसमें इंग्लिश कंपोजिशन में कोई ऐसा पार्ट जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें? कंपोजिशन में आपने एक तो ये है कि there are 3 areas which require your skills and practice, like essay, presi, composition, comprehension and translation. उन पे तो आपने एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है एंड एवेल्युएट कराना है। बाकी जो एरियाज आते हैं उन पे आपने, आई वुड अगेन
आई सजेस्ट टू एस्पायरेंट्स कि उन पे भी नोट्स बनाएं. नोबडी सजेस्ट कि आप ऐसे और कंपोजिशन के नोट्स बनाएं. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे कंपोजिशन के नोट्स बनाएं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इग्नोर्ड अनफॉर्चुनेटली. अच्छा सर, इसमें जो इंग्लिश कंपोजिशन में वोकेबलरी जो है बहुत मतलब ज़्यादा है, कहाँ से ये वोकेबलरी हम प्रिपेयर करें, क्योंकि अनलिमिटेड वर्ड्स हैं. जी, वोकेबलरी के सबसे बड़े इश्यूज हैं एस्पायरेंट्स को. कंपोजिशन के अलावा भी जब नए एस्पायरेंट्स तैयारी शुरू करते हैं ना, जी जी. तो वो जैसे ही वर्ड्स मीनिंग याद करना शुरू करते हैं तो वो एक पैसिव वोकेबलरी बन जाती है. वो लिख नहीं पाते. जब लिखते हैं तो वोकेबलरी आती नहीं है उनके ज़हन में. नहीं आती. हाँ, आती नहीं है. तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं. और उसके अलावा जो है आपकी आपकी वोकेबलरी का स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप डाउन के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ रहे हो और आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यू आर कैपेबल टू सिट इन CSS एग्जाम. नंबर 1. नंबर 2, आपके जो आते हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट आप वो मोस्टली आते हैं GRE से. जी जी. अगर आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर आपके पास पूरा साल है तो उस पर तैयारी करें. लेकिन आई वुड अगेन एडवाइस कि अगर आप GRE की वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं तो डोंट यूज़ इट इन योर एसे. दे आर वेरी डिफिकल्ट वोकेबलरी. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेबलरी याद करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसके डबल मीनिंग्स हो जाते हैं, कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाती है, तो वो उसकी वजह से फेल भी हो सकते हैं. इट मीन्स कि हमने जो लिखना चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल स्टैंडर्ड. आई हैव टोल्ड यू स्टैंडर्ड इज न्यूज़पेपर. ओके. एंड सर इंग्लिश में जो है सेंटेंसेस हमने जो लिखने होते हैं वो कंपाउंड हो या सिंपल सेंटेंसेस हो? जब अगर बंदे को एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, वोकेबलरी भी अच्छा काम किया हुआ है, नॉलेज अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं और आप पंक्चुएशंस अच्छी तरह यूज़ करते हैं और यूज़ करें. सही. अगर पंक्चुएशन आप कॉलन लगा रहे हैं, सेमी कॉलन लगा रहे हैं, हाइफन लगा रहे हैं, डैश लगा रहे हैं, ये दिस क्रिएट्स ब्यूटी इन योर राइटिंग. उस पर एक कमांड लाइन, वो हैं 10-15, उन पे याद कर लें रूल्स, सही इजीली हो जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट कंपाउंड सेंटेंसेस विदाउट मिस्टेक्स, राइट इट. अगर आपको लगता है कि गलतियाँ होंगी तो confine yourself to the short sentences, the shortest possible. थैंक यू सर सो मच. जी नाज़रीन, ये थे हमारे जो है अपना PSP फाजिल बुखारी साहब जिनका हमने इंटरव्यू लिया. एंड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में कर दें, इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.